اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹرینر محمد ذیشان اختر آپ سے مخاطب ہے. النافع کے پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. النافع کے بارے میں چند باتیں. پوائنٹ نمبر 1 پر ہمارے یوٹیوب چینل کا ایڈریس دیا ہوا ہے، آپ اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو اپڈیٹ معلومات ملتی رہیں. پوائنٹ نمبر 2 اور 3 پر ہمارا فیس بک اور ٹویٹر کا پیج کا لنک دیا ہوا ہے، آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو نمبر 5 پر ہمارے پورٹل کا ایڈریس دیا ہوا ہے، آپ ہم سے پورٹل پر جا کر سبجیکٹ سے متعلق سوال پوچھ سکتے ہیں. اور جو ممبرز پورٹل پر موجود ہیں وہ ویڈیوز واچ کر سکتے ہیں، کوئزز اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، فلیش کارڈ استعمال کر سکتے ہیں، نافع کے آفیشیل نوٹس اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اپنی اسٹڈیز کو آن ٹریک رکھ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الانسان لربہ لکنود. In English, indeed, mankind to his Lord is ungrateful. اس آیت کے بعد ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ لیکچر کیمبرج او لیول اردو فرسٹ اینڈ سیکنڈ لینگویج جن کے کوڈ ہیں 3247 اینڈ 3248 دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. ریسرچ ڈاکٹر سائمہ ذیشان کی ہیں جو پی ایچ ڈی ہیں اردو میں، اور ٹرینر محمد ذیشان اختر آپ سے مخاطب ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ لیکچر 1 ہے اور لیکچر 1 میں آج ہم کمپریہنشن کے بارے میں پڑھیں گے. کمپریہنشن میں آپ کو ایک بہت سارے پیراگراف دیے ہوتے ہیں، آپ نے انہیں پڑھنا ہوتا ہے اور پھر مختصر سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں. تمام پیراگراف عموماً ایک ہی ٹاپک پر مشتمل ہوتے ہیں، اور آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے صحت. میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ لیکچر فرسٹ لینگویج 3247 کے علاوہ سیکنڈ لینگویج 3248 کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. آئیے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیپر نمبر 3247 میں جو پہلا سوال ہوتا ہے، پہلے پیپر کا نام ہے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، اور اس کا پہلا سوال ہوتا ہے 25 سطور پر مشتمل ایک اقتباس پڑھ کر مختصر سوالات کے جوابات دینا. اس میں 25 سطور سے کم سطور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 25 سطور یعنی 25 لائنیں ہوتی ہیں. ان 25 لائنوں میں 4 یا 5 پیراگراف موجود ہوں گے. آئیے اب ہم 3247 کا پہلا سوال یعنی اقتباس پڑھ کر مختصر سوالات کے جوابات دینا شروع کرتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس سیکنڈ لینگویج 3248 کے طلبہ ہیں وہ بھی اپنے 3248 میں اس لیکچر کو استعمال کر سکتے ہیں. آئیے اب اقتباس یعنی عبارت پڑھنا شروع کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اس عبارت کا موضوع ہے صحت. اس عبارت میں ٹوٹل 5 پیراگراف موجود ہیں. آپ کے سامنے اسکرین پر ابھی پہلا اور دوسرا پیراگراف دکھائی دے رہا ہے. پہلے پیراگراف میں 3 لائنیں ہیں. دوسرا پیراگراف لائن نمبر 4، 5، 6 اور 7 پر مشتمل ہے. 7 کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے پیراگراف میں 7 لائنیں ہیں، بلکہ 7 کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک اس عبارت کی 7 لائنیں مکمل ہو گئیں. آئیے اسے غور سے پڑھتے ہیں. پہلا پیراگراف، موضوع ہے صحت. میں ریڈنگ شروع کر رہا ہوں. آپ تمام اسٹوڈنٹس اپنے سامنے ایک نوٹ بک یا رجسٹر ضرور رکھیں اور ایک پین ضرور رکھیں تاکہ لیکچر کے دوران امپورٹنٹ پوائنٹس کو اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کر سکیں. پہلا پیراگراف،
موجودہ دور میں انسان مختلف قسم کی مہلک بیماریوں کا شکار ہے، جس کی بڑی وجہ ہماری روزمرہ کی طرز زندگی اور خوراک کا خالص نہ ہونا ہے۔ ایک صحت مند زندگی کے لیے متوازن غذا کا استعمال بہت ضروری ہے۔ متوازن غذا ایسی خوراک ہے جس میں وہ تمام غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان ایک اچھی صحت کے ساتھ اپنے روزمرہ کے کام بھی آسانی سے سر انجام دے سکتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق فاسٹ فوڈ موجودہ دور میں انسانی صحت کے لیے سب سے زیادہ مضر ہے۔ اس کی مقبولیت کی بڑی وجہ ہماری روزمرہ کی مصروف ترین زندگی کے علاوہ سہل پسندی، کھانے کا جلد تیار ہو جانا، عورتوں کا گھر سے باہر کام کرنا اور زبان کی حد تک اس کا عمدہ اور چٹپٹا ذائقہ شامل ہے۔ ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ہمیں متوازن غذا کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ صحت بخش کھانے کھائیں، اپنے جسم کو اس قسم کے کھانوں کا عادی بنائیں، ہر چیز کے استعمال میں اعتدال رکھیں اور کھانا مناسب وقت پر کھائیں۔ تیسرا پیراگراف اور چوتھا پیراگراف آپ کے سامنے ہیں۔ ہم ریڈنگ جاری رکھتے ہیں۔ انسانی زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے متوازن خوراک کے علاوہ صفائی، تازہ ہوا اور ورزش کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ غذا اور ورزش آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ موجودہ دور میں انسان اپنی غذائی توانائی کا صرف چوتھائی حصہ یعنی 1/4 یا 25% صرف چوتھائی حصہ استعمال کر پاتا ہے۔ اس کی وجوہات میں کم پیدل چلنا، ٹرانسپورٹ اور کام کاج میں مشینوں کا زیادہ استعمال سر فہرست ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق پیدل چلنا ایک مفید ورزش ہے۔ پیدل چلنے سے جسم کے تمام پٹھے حرکت کرتے ہیں، وزن کم ہوتا ہے اور یہ ورزش بغیر کچھ قیمت ادا کیے عمر بھر جاری رکھی جا سکتی ہے۔ انسانی صحت کے لیے متوازن خوراک کے ساتھ ساتھ پانی کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ غذا کے بغیر تو انسان ہفتوں زندہ رہ سکتا ہے، مگر پانی کے بغیر چند دن بھی زندہ رہنا محال ہے۔ پانی ہماری غذا ہضم کرنے، جسم سے فاسد مادے خارج کرنے اور ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو متوازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پانچواں پیراگراف آپ کے سامنے ہے، میں ریڈنگ جاری رکھتا ہوں۔ ایک صحت مند زندگی کے لیے غذا کے ساتھ باقی معمولات زندگی کو وقت پر بجا لانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن آج کل کی مصروف زندگی میں وقت پر کھانا پینا، سونا جاگنا اور ورزش کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اگر ان تمام معمولات کو وقت کے مطابق سر انجام دیا جائے تو ایک صحت مند، لمبی اور خوشگوار زندگی بسر کی جا سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں 17 لائنیں مکمل ہوئیں اور یہ عبارت 17 لائنوں پر مشتمل تھا، جس میں 5 پیراگراف تھے۔ ہم نے 5 پیراگراف کی ریڈنگ کی، سنی اور اب ہر پیراگراف کو انفرادی طور پر دیکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلا پیراگراف آپ کے سامنے ہے جس میں 3 لائنیں ہیں۔ اس پیراگراف کو غور سے دیکھنے پر جو اہم نکات سامنے آتے ہیں وہ ہیں انسان کا جو مسئلہ ہے یا پرابلم ہے وہ ہے جان لیوا امراض، جس کے لیے یہاں مہلک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مہلک کا مطلب جان لیوا، فیٹل، لیتھل۔ ایسی ڈیزیزز، ایسی بیماریاں، ایسے امراض جو انسان کی جان لے لیتے ہیں۔ لفظ مہلک ہلاک سے نکلا ہے اور ہلاک کا مطلب ہوتا ہے مر جانا، تو مہلک بیماری کا مطلب ہوا
ऐसी बीमारियां जो इंसान की जान ले लेती हैं, यानी जानलेवा अमराज, और अमराज मर्ज की जमा है। डियर स्टूडेंट, जानलेवा अमराज के जो असबाब हैं जो इस पैराग्राफ से हमारे सामने आते हैं वो दो हैं। पहला सबब जो इस पैराग्राफ में बयान हुआ वो है फितरी उसूलों को, यानी नेचुरल प्रिंसिपल्स यानी फितरी उसूलों से हट कर ज़िंदगी गुजारना, यानी इंसान जो है वो नेचुरल प्रिंसिपल से हट के ज़िंदगी गुजारता है। ठीक है, वो हरे भरे दरख्तों के दरमियान आरामदेह और पुरसुकून घर बनाने के बजाय कंक्रीट में रहता है, मशीन लगाता है और मशीनें इस्तेमाल करता है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा सबब जो इन जानलेवा अमराज का है, जानलेवा अमराज में शामिल हैं कैंसर, हेपेटाइटिस। इसका दूसरा सबब है खाने पीने की अशिया में मिलावट। ठीक है, ये दो असबाब जो हैं वो इस पैराग्राफ के अहम नुकात हैं। आइए अब देखते हैं कि ये जानलेवा अमराज का मसला हल किस तरह हो सकता है। ये हल होगा मुतवाज़न ग़िज़ा से, यानी बैलेंस्ड डाइट से। और मुतवाज़न ग़िज़ा में क्या क्या खूबियाँ हैं, देखिए एक खूबी दी हुई है, मुकम्मल ग़िज़ाई अजरा से भरपूर, यानी उसमें कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक मुतवाज़न ग़िज़ा में, यानी एक बैलेंस डाइट में। और इसका फ़ायदा क्या है कि इसका फ़ायदा है कि जो मुतवाज़न ग़िज़ा उसका फ़ायदा है कि वो बेहतरीन सेहत की ज़ामिन होती है, यानी एक्सीलेंट हेल्थ की गारंटी देती है, बेहतरीन सेहत की ज़ामिन होती है। तो स्टूडेंट्स, दूसरा पैराग्राफ आपके सामने है। दूसरा पैराग्राफ लाइन नंबर 7 पर ख़त्म हो रहा है। इसके अहम निकात हैं, अमराज का पहला सबब फितरी उसूलों से हटकर ग़िज़ा खाना, जैसे फ़ास्ट फूड। ये फ़ास्ट फूड के गिर्द घूमता है कि जो इंसान जो फ़ास्ट फूड खाता है और जो कुदरत ने उसके लिए फल और सब्ज़ियाँ और गोश्त और मछली और परिंदे का गोश्त बनाया है, उसके बजाय वो फ़ास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, यानी फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल के बजाय वो फ़ास्ट फूड पसंद करता है। इसकी वजूहात इस पैराग्राफ में बयान की गई हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो 3 वजूहात हैं वो मैंने बॉक्सेस में लिखी हैं। मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी गुजारना और मेहनत के बजाय आराम तलबी पसंद करना, ये 2 बातें हैं जिसको मैंने ज्वाइन कर दिया है। एक मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी गुजारना और मेहनत के बजाय आराम तलबी पसंद करना, ये 2 वजूहात हैं। एक और वजह है मियाँ बीवी दोनों का मुलाजमत करना और घर में सेहत बख्श खाने ना पकाना। एक तीसरी वजह भी है, सिर्फ ज़ुबान के जायके के लिए, यानी बस ज़ुबान को मज़ा आए, ज़ुबान में चटखारा आए, ज़ुबान के जायके के लिए इंसान गैर मयारी, गैर सेहत बख्श और मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ खाना जो है वो खा लेता है, जो फ़ौरी और कम वक्त में तैयार होकर हाजिर की जा सके। ठीक है, फ़ौरी और कम वक्त में इंसान खाना खाना चाहता है और उसके लिए वो मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ भी खा लेता है, गैर मयारी ग़िज़ा भी खा लेता है, गैर सेहत बख्श भी खा लेता है। ये तीनों बातें फ़ास्ट फूड के लिए इस्तेमाल की गई हैं। स्टूडेंट, दूसरे पैराग्राफ में एक और भी बात है कि अमराज का पहला सबब फितरी उसूलों से हटकर ग़िज़ा खाना, जैसे फ़ास्ट फूड, इससे बचाव कैसे मुमकिन है। इससे बचाव के 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, पहला नुक्ता, वक्त पर खाना और सेहत बख्श ग़िज़ा खाना। बचाव का दूसरा तरीक़ा, एतदाल यानी मयाना रवि इख्तियार करना। बचाव का तीसरा तरीक़ा, कसरत से मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ ना खाना, परहेज़ करना। लेकिन अब यहाँ पर एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आ रहा है, कैसे कैसे कैसे। अगर कोई आदमी वक्त पर खाना खाना चाहता है और सेहत बख्श ग़िज़ा खाना चाहता है, लेकिन उसका दिल चाहता है कि वो फ़ास्ट फूड खाए, तो अब वो क्या करे, ये कैसे मुमकिन है? आप इसमें अपनी राय दे सकते हैं। दूसरा जो बचाव का तरीका है कि इंसान अपने खाने में एतदाल यानी मयाना रवि इख्तियार करे। ठीक है, ये कैसे मुमकिन होगा? ठीक है, यानी इंसान के खाने में बैलेंस किस तरह से होगा। ठीक है, आप अपनी राय दे सकते हैं, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन बन सकता है इसका।
बचाव का तीसरा तरीका फास्ट फूड से बचाव का तीसरा तरीका है कसरत से मुरगन ग़िज़ाएं ना खाना, परहेज करना। लेकिन परहेज कैसे किया जाए? फास्ट फूड से मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज कैसे किया जाए? अपनी अपनी राय दें। यहाँ ये 3 ओपन एंडेड क्वेश्चन सामने आते हैं। अब तीसरा पैराग्राफ आपके सामने है। डियर स्टूडेंट्स, तीसरे पैराग्राफ में जो अहम नुकात हैं वो हैं अमराज का पहला सबब, फितरी उसूलों से हटकर ज़िंदगी गुजारना। इससे बचाव के 3 और तरीक़े इस पैराग्राफ में यानी तीसरे पैराग्राफ में बताए गए हैं। बचाव का पहला तरीका है ग़िज़ा में तवाज़ुन कायम करना। और यहाँ पर एक ओपन एंडेड क्वेश्चन बन सकता है कि अगर ग़िज़ा में तवाज़ुन कायम कर रखना हो तो वो कैसे रखा जाए? यहाँ पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फितरी उसूलों से हटकर जब इंसान ज़िंदगी गुजारता है तो इसे बचने का यानी इसे बचाव का दूसरा तरीका है सफाई इख्तियार करना और साफ़ माहौल में रहना। लेकिन कैसे? यहाँ पर आप अपनी राय दे सकते हैं। ये एक ओपन एंडेड बात हो गई। उसी तरह फितरी उसूलों से हटकर जो इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है उससे बचाव का तीसरा तरीका है कसरत करना यानी वर्जिश करना। कसरत करना यानी वर्जिश करना। अब वर्जिश कैसे की जाए, इसमें आप अपनी राय दे सकते हैं, यानी ये भी एक ओपन एंडेड बात है। स्टूडेंट, तीसरे पैराग्राफ में एक और अहम नुक्ता भी है, वो है वर्जिश या कसरत के फ़वाइद। डियर स्टूडेंट, वर्जिश या कसरत का पहला फ़ायदा जो इस पैराग्राफ में बताया गया है वो ये बताया गया है कि इंसानी जिस्म में ग़िज़ा को तवानाई में तब्दील करने में मदद देना। यानी जब आप वर्जिश करते हैं तो आपके जिस्म में जो ग़िज़ा होती है वो तवानाई में तब्दील होना शुरू हो जाती है। अगर आप वर्जिश नहीं करेंगे तो जिस्म में ऐसी ग़िज़ा भी मौजूद रहेगी जो सिर्फ ग़िज़ा की हालत में आपके जिस्म में मौजूद होगी, वो तवानाई में तब्दील नहीं होगी, यानी एनर्जी में तब्दील नहीं होगी। वर्जिश या कसरत का दूसरा फ़ायदा जो यहाँ बताया गया है इस पैराग्राफ में वो है कि वर्जिश के बग़ैर सिर्फ 25% इंसानी ग़िज़ा, 25% यानी 1/4, सिर्फ 25% इंसानी ग़िज़ा यानी इंसानी फूड तवानाई में यानी एनर्जी में तब्दील हो पाती है, जबकि 75% ज़ाय हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत अहम नुक्ता है कि अगर आप वर्जिश करते हैं तो 25% तवानाई जो आपके जिस्म में पैदा हुई है उसकी मिक़दार बढ़ना शुरू हो जाती है। ओके, तो ये तीसरे पैराग्राफ का एक और अहम नुक्ता था। तीसरे पैराग्राफ में एक और अहम बात भी है और वो ये है कि इंसान वर्जिश या कसरत क्यों नहीं कर पाता। इंसान वर्जिश या कसरत क्यों नहीं करता, इसकी 2 वजूहात बयान की गई हैं। पहली वजह है पैदल चलने से परहेज़। इंसान ने पैदल चलना छोड़ दिया है, ठीक है। और दूसरी वजह है इंसान का मशीनों पर भरोसा और उन्हें खूब इस्तेमाल करना, जैसे सफ़र के लिए गाड़ी और ताज़ा हवा के बजाय एयर कंडीशन इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये वजूहात है कि इंसान वर्जिश नहीं करता बल्कि एक आराम तलब ज़िंदगी गुजारना चाहता है। आइए पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 4 के अहम नुकात हैं पैदल चलना एक वर्जिश है। इस पैराग्राफ में पैदल चलने को एक वर्जिश करार दिया गया है, एक कसरत करार दिया गया है और इसके फ़वाइद बताए गए हैं। देखिए, इसके जो पहला फ़ायदा बताया गया है वो ये है कि पट्टे नहीं अकड़ते और मजबूत रहते हैं, यानी इंसान फिट रहता है, इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा जाम नहीं हो जाता। एक और फ़ायदा बताया गया है कि इंसान का वज़न कम हो जाता है, यानी इंसान मोटा नहीं होता। एक और फ़ायदा बताया गया कि ये मुफ्त वर्जिश है। इस वर्जिश के लिए आपको कुछ पैसे या कुछ कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। और चौथा फ़ायदा बताया गया है कि ये पूरी उम्र की वर्जिश है, यानी छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा जवान आप हर कोई इसको कर सकता है और आप बुढ़ापे तक इस वर्जिश को यानी पूरी उम्र ये वर्जिश जारी रखी जा सकती है। जैसे चौथे पैराग्राफ में पानी के मुतालिक भी एक बात बताई गई है कि पानी एक अहम नेमत है। इसकी अहमियत के बारे में बताया गया है कि पानी के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं, यानी
اوپر لکھا ہوا ہے کہ غذا کے بغیر تو انسان ہفتوں زندہ رہ سکتا ہے، مگر پانی کے بغیر چند دن بھی زندہ رہنا محال ہے۔ یعنی پانی کے بغیر زندگی کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ پانی کے 3 فوائد کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے کہ پانی کھانا ہضم کر کے توانائی بنا دیتا ہے۔ ایک اور فائدہ بیان ہوا ہے کہ انسانی جسم سے زہریلے مادے باہر نکالتا ہے۔ ایک اور فائدہ بیان ہوا ہے کہ انسانی جسم کا درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر معتدل رکھتا ہے، یعنی بیلنس ٹیمپریچر میں رکھتا ہے انسانی جسم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 5 پیراگراف آپ کے سامنے ہیں۔ 5ویں پیراگراف کے اہم نکات میں پہلا اہم نکتہ وقت پر کام کے فوائد ہے۔ وقت پر کام کرنے کے 3 فائدے جو بیان کیے گئے ہیں، ان میں پہلا فائدہ ہے صحت مند زندگی کی ضمانت۔ جب کوئی آدمی وقت پر کام کرتا ہے، اپنے معمولات زندگی کو وقت پر مکمل کرتا ہے، تو اس کی زندگی صحت مند زندگی بن جاتی ہے۔ اس کے سونے کے وقت وہ سوتا ہے، کام کے وقت وہ کام کرتا ہے۔ جیسے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ اسکول آ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں نیند ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھوں میں نیند ہے، وہ رات بھر کا جاگا ہوا ہے، وہ اسکول میں صحیح سے پڑھائی نہیں کر سکے گا، اس کی زندگی صحت مند زندگی نہیں کہلائے گی۔ اور ایک اسٹوڈنٹ جو وقت پر سوتا ہے، وقت پر جاگتا ہے، اس کی زندگی صحت مند زندگی کہلائے گی۔ جو اسٹوڈنٹس وقت پر کام کرنے کے فوائد میں ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان لمبی عمر پاتا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان کو صحت ملے گی، صحت کی نعمت ملے گی، تو انسان کی عمر بڑھتی چلی جائے گی۔ وقت پر کام کرنے کا ایک اور فائدہ جو اس پیراگراف میں ڈیفائن کیا گیا، وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ ظاہر ہے جب انسان کو صحت ملے گی، سکون ملے گا، آرام ملے گا اور لمبی عمر ملے گی، تو اس کی زندگی خوشگوار ہو ہی جائے گی، اور ہر کوئی اس سے خوش ہوگا کہ وہ شخص وقت پر کام کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ 5ویں پیراگراف میں ایک اور بھی بات بیان کی گئی ہے، ایک اور بھی اہم نقطہ بیان کیا گیا، اور وہ نقطہ ہے وقت پر کام نہ کرنے کی وجوہات، کہ انسان وقت پر کام کیوں نہیں کر پاتا۔ اس کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ ہے زندگی کی بے پناہ مصروفیات۔ زندگی میں انسان کی بے پناہ مصروفیات آ گئی ہیں، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک دوسری وجہ بھی جو ہے بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کھانے پینے اور سونے جاگنے کے اوقات میں خرابی، کہ انسان جو ہے وہ کھانے پینے اور اپنے سونے جاگنے کے اوقات میں بدنظمی کا شکار ہے۔ ایک تیسری وجہ بھی بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ورزش نہیں کرتا۔ ورزش کا عمل آپ کو وقت کی پابندی سکھاتا ہے، تو انسان ورزش کے عمل سے وقت کی پابندی نہیں سیکھتا۔ یہ 3 وجوہات وقت پر کام نہ کرنے کی اس پیراگراف میں بیان کی گئی ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوالات کے کل نمبر 25 ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہے، آج کل کا انسان بیماریوں میں کیوں مبتلا ہے؟ 2 وجوہات لکھیے۔ یعنی انسان کو جو جان لیوا امراض، مہلک بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ نے کوئی 2 وجوہات لکھنی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلا پیراگراف کے جو اہم نکات تھے اس میں جان لیوا امراض کو ڈسکس کیا تھا۔ سوال نمبر 1 کا آنسر جن اہم نکات میں ہے اس کو میں نے پنک کلر سے یا لائٹ پرپل کلر سے فل کر دی ہے۔ آپ دیکھیے اس کا آنسر آپ کو ان باکسز میں ملے گا، انسان، جان لیوا امراض اور پہلا سبب اور دوسرا سبب۔ اس کا آنسر یوں لکھا جا سکتا ہے، یہ ایک سیمپل آنسر ہے، آپ اپنے الفاظ میں آنسر لکھنے کی کوشش کیجیے، اور عبارت کے الفاظ جو کوشچن میں دیے گئے ہیں انہیں ریپیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے نمبر کٹ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا ایک سیمپل آنسر جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے، موجودہ دور کا انسان 2 وجوہات کے باعث بیماریوں میں گھرا ہوا ہے۔
اول یہ کہ وہ فطرت کے اصولوں سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، دوم انسانی غذا اب خالص نہیں رہی اور ملاوٹ سے بھرپور ہو گئی ہے۔ تو اس آنسر میں انسان کی جو بیماریاں ہیں ان کی دو وجوہات میں فطرت کے اصولوں سے ہٹ جانا اور ملاوٹ والی غذا کا استعمال، یہ دو باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس اس سوال کے 2 نمبر ہیں۔ اگر آپ کوئی ایک وجہ لکھیں گے تو آپ کو 2 کے بجائے 1 نمبر دیا جائے گا۔ آئیے اب دوسرے سوال کی طرف پڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، مصنف کے مطابق فاسٹ فوڈ کے عام ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ 4 باتیں لکھیے۔ یہ 4 نمبر کا سوال ہے۔ اس میں اگر آپ 4 پوائنٹس دیں گے، 4 مختلف باتیں لکھیں گے تو آپ کو 4 نمبر ملیں گے۔ خیال رہے کہ چاروں باتیں مختلف ہونی چاہیے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے کس سلائیڈ میں پڑھی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے دوسرے پیراگراف کے جو نکات نوٹ کیے تھے، جس کو میں نے لائٹ پرپل شیڈ سے میں نے ان باکسز کو فل کر دیا ہے، ان میں آپ کو اس کا آنسر ملے گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب میں فاسٹ فوڈ کھانے کی وجوہات بتا رہا تھا تو مصروف زندگی گزارنا اور محنت کے بجائے آرام طلبی پسند کرنا، اسے میں نے 2 مختلف پوائنٹس، 2 مختلف نکات جو ہے قرار دیا تھا۔ اس کو میں نے آگے 2 ہندسے سے ظاہر کیا ہے کہ 2 کا مطلب ہے کہ اس باکس میں 2 مختلف باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو 2 باتیں آپ کے سامنے ہیں، تیسری بات اس باکس سے مل جائے گی، چوتھی بات اس باکس سے مل جائے گی۔ یہ 4 وجوہات ہو گئی۔ اب آئیے ہم سیمپل آنسر کی طرف آتے ہیں۔ یہ سیمپل آنسر ہے، اس میں 4 مختلف وجوہات کو میں نے لکھا ہے۔ آپ اپنے الفاظ میں بھی اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ جواب پڑھ رہا ہوں۔ فاسٹ فوڈ عام ہونے کی سب سے بڑی وجہ انسان کی بے پناہ مصروف زندگی ہے۔ سکون سے کھانا کھانے کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ کچن سنبھالنے والی خاتون خانہ اب مہنگائی کے باعث ملازمت کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ تیسری وجہ کھانا پکانے کا اہتمام نہ ہونا ہے کہ بس جلدی سے تیار مسالے سے کھانا پکا کر چولہے سے جان چھڑا لی جاتی ہے۔ چوتھی وجہ طرح طرح کے ذائقہ دار کھانے ہیں جو اس سے قبل ایجاد نہ ہوئے تھے، جیسے بروسٹ، شاورما، برگر وغیرہ۔ ان سب کی مہک مغناطیس جیسی کشش رکھتی ہے۔ آئیے اب سوال نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3، وہ کون سی باتیں ہیں جو صحت مند زندگی گزارنے میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں؟ 3 باتیں لکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سوال میں پوچھا گیا ہے کہ کون سی 3 باتیں صحت مند زندگی گزارنے میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ صحت مند زندگی گزارنے میں کون سی 3 باتیں مدد دے سکتی ہیں، تو اگر آپ اس کو منفی انداز میں لکھیں گے، یعنی نیگیٹو انداز میں لکھیں گے، تو وہ مدد رکاوٹ بن جائے گی، اور ہم اس کوشچن میں یہی ٹیکنیک استعمال کریں گے۔ ایک سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ تیسرے پیراگراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر انسان فطری اصولوں سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو وہ اس سے بچ کیسے سکتا ہے۔ اس کے بچاؤ کے ہم نے 3 طریقے ڈسکس کیے تھے: غذا میں توازن قائم رکھنا، صفائی اختیار کرنا اور صاف ماحول میں رہنا، کثرت کرنا یعنی ورزش کرنا۔ اسے میں نے لائٹ پرپل کلر سے شیڈ دے دیا ہے، اس کا مطلب اسی میں ہمارا آنسر موجود ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ان 3 کاموں کو کر کے ہم بچ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ 3 کام نہ کریں تو ہم صحت مند زندگی نہیں گزار سکتے، یعنی ان تینوں کاموں کا نہ ہونا ہی صحت مند زندگی کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ ہم اپنا آنسر ان کو منفی یعنی نیگیٹو انداز میں لکھیں گے، یعنی اگر ہم غذا میں توازن قائم نہیں رکھیں گے، اگر ہم صفائی اختیار نہیں کریں گے، اگر ہم صاف ماحول میں نہیں رہیں گے یعنی صاف ستھری ہوا میں سانس نہیں لیں گے، اور اگر ہم ورزش نہیں کریں گے
तो ये तमाम चीज़ें रुकावट बन जाएंगी। आइए अब हम सैंपल आंसर की तरफ आते हैं। ये सैंपल आंसर है, मैं आपके सामने इसे पढ़ रहा हूँ। आप अपने अल्फाज में भी इसका जवाब लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे आपने सवाल के अल्फाज, जो अल्फाज सवाल में इस्तेमाल हुए हैं और जो अल्फाज इबारत में इस्तेमाल हुए हैं, उन्हें कम से कम अपने जवाब में इस्तेमाल करें और अपना ज़ख़ीरा अल्फाज इस्तेमाल करें। देखिए सैंपल आंसर आपके सामने है, मैं इसे पढ़ रहा हूँ। ग़िज़ा का मुतवाज़न ना होना सेहत के क़याम में रुकावट बन सकता है। ग़िज़ा में एतदाल सेहत की ज़मानत है। इसके अलावा मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं का ख़ुद को आदी बना लेना भी सेहत को तबाह कर देता है। साफ़ सुथरे माहौल के बजाय आलूदगी में रहने से सेहत जल्द ख़राब हो जाती है। साफ़ सुथरी हवा मैसर ना हो तो इंसान की उम्र कम हो जाती है। आइए अब सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, तीसरे पैराग्राफ में ग़िज़ा और वर्जिश आपस में लाजिम व मलजूम हैं से मुसन्निफ़ की क्या मुराद है? दो बातें लिखें। जी स्टूडेंट्स, आपने दो बातें लिखनी हैं जिससे ज़ाहिर हो कि मुसन्निफ़ ने जो ये जुमला लिखा है कि ग़िज़ा और वर्जिश यानी फूड और एक्सरसाइज, यानी ग़िज़ा और कसरत आपस में लाजिम व मलजूम है, यानी इसका इन दोनों चीज़ों का आपस में एक ना टूटने वाला रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है? उस रिश्ते के बारे में आपने दो बातें लिखनी है। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात ये कि यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तीसरे पैराग्राफ में। जी स्टूडेंट्स, तीसरे पैराग्राफ का मतलब ये हुआ कि ये जो जुमला जो वावैन यानी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, ये तीसरे पैराग्राफ में मौजूद है। लेकिन इस सवाल में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने इसका आंसर तीसरे पैराग्राफ के अलावा और किसी पैराग्राफ से नहीं देना। इसका मतलब ये हुआ कि जवाब मालूम करने के लिए सिर्फ तीसरा पैराग्राफ ना पढ़ें, दीगर पैराग्राफ भी पढ़ें। तीसरे पैराग्राफ का इशारा सिर्फ ये बताने के लिए दिया गया है कि जुमला ग़िज़ा और वर्जिश आपस में लाजिम व मलजूम हैं, इबारत के तीसरे पैराग्राफ में मौजूद है। आइए देखते हैं कि इसका जवाब किन किन स्लाइड्स में हम पढ़ चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने तीसरे पैराग्राफ में वर्जिश और कसरत के फ़वाइद के ऊपर डिस्कस किया था कि वर्जिश से इंसानी जिस्म में जो ग़िज़ा होती है वो तवानाई में तेज़ी से तब्दील होती है। यानी ये जो लाइट पर्पल कलर का शेडेड बॉक्स है और ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये जो दो बॉक्सेस हैं, इसमें आपका आंसर मौजूद है। लेकिन चूँकि ये सिर्फ तीसरा पैराग्राफ है, हम तीसरे पैराग्राफ के अलावा भी देखेंगे कि और किस पैराग्राफ में वर्जिश या कसरत के फ़ायदे या वर्जिश और ग़िज़ा के दरमियान कोई ताल्लुक़ बयान किया गया है। आइए देखते हैं। देखिए, चौथे पैराग्राफ में पैदल चलना एक वर्जिश है और यहाँ पर जो हमने पैदल चलने के जो फ़वाइद लिखे थे उसमें एक फ़ायदा लिखा था, इंसान मोटा नहीं होता। इंसान वर्जिश करता है तो वो मोटा नहीं होता, उसका वज़न बढ़ता, उसका वज़न ख़तरनाक हद तक बढ़ता नहीं है, उसमें मोटापा नहीं आता। और मोटापा चूँकि ग़िज़ा से उसका बराह रास्त ताल्लुक़ होता है, इसका मतलब हुआ कि इस स्लाइड में भी वर्जिश और ग़िज़ा का एक रिश्ता बयान किया गया है कि वर्जिश से इंसान मोटा नहीं होता। आइए देखते हैं सैंपल आंसर। तीसरे पैराग्राफ में ग़िज़ा और वर्जिश आपस में लाज़िम मलज़ूम है से मुसन्निफ़ की क्या मुराद है, इसके बारे में जो दो बातें मैंने लिखी हैं आपके सामने पेश हैं। सैंपल आंसर आप अपने अल्फाज में भी इसका जवाब लिख सकते हैं। मैंने जो आंसर लिखा है आपके सामने पेश है। ग़िज़ा इंसानी जिस्म के लिए उस वक्त मुफीद होगी जब वो ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई में तब्दील होगी। ऐसा वर्जिश करने से मुमकिन होता है। इसके अलावा वर्जिश करने से इंसान मोटा नहीं होता और उसके पट्टे भी हरकत में रहते हैं। अब हम सवाल नंबर 5 की तरफ आएंगे। सवाल नंबर 5 है, इंसान अपनी ग़िज़ाई तवानाई का भरपूर इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा है? तीन बातें लिखें। यानी हमने तीन ऐसी बातें लिखनी हैं कि इंसान जो ग़िज़ा खाता है वो ग़िज़ा पूरी की पूरी तवानाई में
या ज़्यादातर तवानाई में तब्दील क्यों नहीं हो पा रही? इंसान ऐसा क्या काम कर रहा है कि वो जो ग़िज़ा खा रहा है, वो जो खाना खा रहा है, वो ज़ाया हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, हमने तीसरे पैराग्राफ में एक अहम नुक्ता लिखा था, वर्जिश या कसरत इंसान क्यों नहीं कर पाता। इसकी दो वजूहात हमने बयान की थी कि इंसान पैदल चलने से परहेज़ करता है, ये पहली वजह। आपको याद होगा कि वर्जिश ही से इंसान की ग़िज़ा जो इंसान के जिस्म में होती है वो तेज़ी से तवानाई में तब्दील होती है, और अगर अपने इंसान वर्जिश नहीं करेगा तो वो अपनी ग़िज़ा का सिर्फ चौथाई हिस्सा इस्तेमाल कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वजूहात हैं तो इन वजूहात को हम जवाब में लिख सकते हैं। अब देखिए, पहली वजह जो बयान की गई है वो है पैदल चलने से परहेज़, और इस बॉक्स में दो वजूहात इस्तेमाल की गई हैं जिसे मैंने रेड कलर के 2 से ज़ाहिर किया है। पहला है इंसान का मशीनों पर भरोसा करना और उन्हें खूब इस्तेमाल करना, जैसे सफ़र के लिए गाड़ी। ये एक वजह हो गई कि इंसान थोड़े से फासले के लिए भी गाड़ी इस्तेमाल करना चाहता है। और दूसरी चीज़, इंसान ताज़ा हवा के बजाय यानी फितरी और कुदरती माहौल यानी नेचुरल इन्वायरमेंट की बजाय एयर कंडीशन इस्तेमाल करके फ्रेश एयर हासिल करता है। यही वजह है कि इंसान वर्जिश नहीं कर पाता, क्योंकि वो गाड़ी इस्तेमाल करता है, वो ताज़ा हवा में चहलकदमी के बजाय एयर कंडीशन में रहना पसंद करता है, और पैदल चलने से परहेज़ करता है। यानी ये दो वजूहात और ये एक वजह, इन तीनों वजूहात को हम अपने जवाब में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक सैम्पल आंसर है, आप अपने अल्फाज में भी जवाब लिख सकते हैं। आइए देखते हैं सैम्पल आंसर में क्या लिखा हुआ है। इंसान ने पैदल चलना कम कर दिया है। पैदल चलने से परहेज़ इंसान की ग़िज़ा को तवानाई में तब्दील होने से रोक रहा है। इसके अलावा इंसान मुख्तसर फासले के लिए भी गाड़ी का इस्तेमाल करता है। मशीनों के बेजा इस्तेमाल से भी इंसान अपनी तवानाई के मुकम्मल इस्तेमाल से कासिर है। जी स्टूडेंट, अब हम सवाल नंबर 6 की तरफ आएंगे। सवाल नंबर 6, मुसन्निफ़ के मुताबिक इंसानी सेहत के लिए कौन सी वर्जिश सबसे ज़्यादा मौजू है और इसके क्या फ़वाइद हैं? 4 बातें लिखें। जी स्टूडेंट्स, इसमें आपने लिखना है, उस वर्जिश का नाम लिखना है जो मुसन्निफ़, जो इस इबारत का उनके जो मुसन्निफ़ हैं उनके मुताबिक इंसानी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा मौजू हैं। उसके बाद आपने उनके फ़वाइद लिखने हैं। ये 4 नंबर का सवाल है। आइए देखते हैं किस स्लाइड में इसका आंसर मौजूद था। डियर स्टूडेंट, चौथे पैराग्राफ में मुसन्निफ़ ने पैदल चलने को एक मुफीद वर्जिश करार दिया है और इसके 3 फ़वाइद बयान किए हैं। ये एक सैम्पल आंसर है, आप अपने अल्फाज में भी जवाब लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सैम्पल आंसर में मुलाहज़ा कीजिए। पैदल चलना मुसन्निफ़ की नज़र में इंसानी सेहत कायम रखने का बेहतरीन नुस्खा है। इससे जिस्म का हर पट्टा हरकत में रहता है और जाम नहीं होता। इससे मोटापा भी गायब हो जाता है। इस मुनफरिद वर्जिश की ख़ास बात यह है कि इसमें कुछ भी रकम खर्च नहीं होती। इसके अलावा बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई इस वर्जिश से मुस्तफ़ीद हो सकता है। गोया ये पूरी उम्र की वर्जिश है। आइए अब सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, पानी के बग़ैर इंसानी जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं? 4 बातें लिखें। इस सवाल का मतलब ये हुआ कि अगर इंसान पानी ना पिए या पानी की कमी हो जाए तो इंसानी जिस्म में क्या असरात रोनमा होने शुरू हो जाएंगे, यानी पानी की कमी से इंसान पर क्या अफेक्ट होता है। आपने 4 बातें लिखनी हैं। आइए देखते हैं कि पानी के असरात इस स्लाइड में बयान किए गए थे। डियर स्टूडेंट, हमने चौथे पैराग्राफ में ये डिस्कस किया था कि पानी एक अहम नेमत है और उसकी अहमियत और 3 फ़वाइद हमने बयान किए थे। इन्हीं को सामने रखते हुए हम इस सवाल का जवाब लिखेंगे। ये एक सैम्पल आंसर आपके सामने है, मैं इसे रीड कर रहा हूँ, आप अपने अल्फाज में भी इसका जवाब लिख सकते हैं। सवाल नंबर 7 का सैम्पल आंसर मुलाहज़ा कीजिए। पानी के बग़ैर
इंसान ज़्यादा से ज़्यादा चंद ही रोज़ ज़िंदा रह सकता है। पानी के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। तवानाई की तैयारी में एक अहम जुज़ पानी है, जिसके बगैर ग़िज़ा तवानाई में तब्दील नहीं हो सकती। इंसानी जिस्म से जहरीले मादे पानी में हल होकर बाहर निकल जाते हैं। बसूरत दीगर इंसानी जिस्म को उन जहरीले मादों से नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा जिस्म का दर्जा हरारत मोतदिल रखने में पानी का किरदार नहायत अहम है। स्टूडेंट्स, अब हम सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है, मुसन्निफ ने आखिरी पैराग्राफ में वक्त की अहमियत के मुतालिक क्या कहा है? वक्त की अहमियत के बारे में आप अपनी राय तफसील से लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 नंबर का सवाल है। इस सवाल में एक लफ्ज़ आखिरी पैराग्राफ इस्तेमाल हुआ है। आखिरी पैराग्राफ का मतलब है 5वां पैराग्राफ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस सवाल के जवाब में मुसन्निफ की राय लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप अपने अल्फाज में अपनी राय देंगे, यानी वक्त की अहमियत के बारे में आप अपनी राय लिखेंगे और 2 नुकात लिखेंगे, तफसीली नुकात लिखेंगे, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। यूँ ये 2 + 1 3 हो जाएगा। आइए देखते हैं। 5वें पैराग्राफ में हमने वक्त पर काम के फ़वाइद डिस्कस किए थे कि वक्त पर काम करने के इंसान को कौन से 3 फ़ायदे होते हैं। स्टूडेंट्स, हमने 5वें पैराग्राफ में वक्त पर काम ना करने की वजूहात बयान की थी कि इंसान किन 3 वजूहात की बिना पर वक्त पर काम नहीं कर पाता। इन्हीं प्रॉम्प्ट्स को, इन्हीं बॉक्सेस को, इन्हीं इशारों को हम इस्तेमाल करेंगे 8वें सवाल का जवाब लिखने में। डियर स्टूडेंट्स, सैम्पल आंसर आपके सामने है। आप अपने अल्फाज में भी इसका जवाब लिख सकते हैं। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि मुसन्निफ ने आखिरी पैराग्राफ में वक्त की अहमियत के मुतालिक क्या कहा है। उसके बाद आप वक्त की अहमियत के बारे में अपनी राय तफसील से लिखेंगे और कम से कम 2 नुकात ज़रूर लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सैम्पल आंसर मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। मुसन्निफ ने 5वें पैराग्राफ में वक्त की अहमियत बताते हुए उसे इंसान की खुशगवार और बीमारियों से पाक ज़िंदगी और लंबी उम्र की ज़मानत करार दिया है। मुझे मुसन्निफ की राय से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ है। अब यहाँ तक आपने मुसन्निफ ने जो वक्त की अहमियत से मुतालिक बात की है, यानी पहली 2 लाइनों में, यानी आंसर की पहली 2 लाइनों में पहले फुल स्टॉप तक आपने मुसन्निफ की बात बयान की है कि मुसन्निफ ने वक्त की अहमियत से मुतालिक क्या कहा है। इसका 1 नंबर हो गया। और इसके बाद जो आप 2 नुकात लिखेंगे, अपनी राय के बारे में तफसीली नुकात लिखेंगे, उस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। मैं आगे पढ़ता हूँ। मुझे मुसन्निफ की राय से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ है। इंसान के खाने पीने और सोने जागने का मामूल अगर बेहतर हो जाए तो उसकी शख्सियत में निखार आ जाता है और उसका हर अमल बरवक्त और मकबूलियत पाता है। ज़िंदगी की बेपनाह मसरूफ़ियात अगर नज़्म ज़ब्त और वक्त की पाबंदी की ताबे हो जाएं तो इंसान की सेहत और खुशियाँ दोनों कायम रहती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 8 सवाल टोटल 25 नंबर के थे। यहाँ पर पहले लेक्चर का ख़ात्मा होता है। ये लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने 25 या इससे कम सतूर पर मुश्तमिल एक इक़्तिबास पढ़ा, जिसका टॉपिक था सेहत, और इस इक़्तिबास से मुताल्लिक़ 8 सवालात थे जिनके कुल नंबर थे 25। हमने हर पैराग्राफ को इनफरादी तौर पर पढ़ा, और इनफरादी तौर पर पढ़ने के बाद हमने हर पैराग्राफ के अहम नुकात निकाले, और अहम नुकात निकालने के बाद हमने उनको बॉक्सेस में लिखा। उनको बॉक्सेस में लिखने के बाद हमने सवालात देखे। सवालात पढ़ने के बाद हमने मुताल्लिका पैराग्राफ या मुताल्लिका स्लाइड्स को देखा। उसके बाद अपने अल्फाज में उनका जवाब लिखा। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे, उनको सॉल्व करने की टेक्निक सीखी। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 1 का इख्तिताम हुआ, और अगला लेक्चर नंबर 2 होगा, और लेक्चर 2 का जो टॉपिक होगा वो होगा ग़िज़ा। ये भी कॉम्प्रिहेंशन होगा, यानी आपको
زیادہ سے زیادہ 25 سطور پر مشتمل ایک اقتباس پڑھنا ہوگا، اور اس اقتباس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے الفاظ میں مختصر سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ یہ اسٹوڈنٹس، اگلے لیکچر کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔